So to all the viewers who are waiting for our guest, she's already here. We have Pragya Prasoon ma'am with her. Ma'am is a acid attack survivor, and not only this, ma'am has even won the Nari Shakti Award in 2019. And there's so much more to learn. मैम ने खुद का organization भी खोला है, Ajeevan Foundation, and today we have her with us, and it's our privilege to have you here, ma'am. And hopefully, we are going to learn like so many things from you, ma'am. If you would just like to introduce yourself as well. Thank you so much for having me, and thank you so much for doing this because I feel that on this Women's Day we need to tell everyone, not only women but also boys and men, that how safe everyone needs to be in this society and how we can do it right, especially safe from any kind of violence and safe from burns. So that's the pledge we are going to take today, that we will ensure safety of every girl and women and also everyone from burns. Yes, ma'am. With that, ma'am, let's just begin with our interview. So, the first question to you would be that you often say that 2026 was definitely not the end of your life, but it was a reroute, right? And 12 days after your wedding, ma'am. So, to all the listeners who are listening you for the very first time, if you could just take us back to that moment at the train, and also how have you moved from a victim mindset into becoming an ambassador for change, ma'am? So yeah, I pray that nothing close to what has happened to me should happen to anyone. But at the same time, you know. Whatever has happened had definitely changed my life overnight. I had a different goal. I wanted to do something different in my life, and I wanted to build my career in a different industry. I wanted to live a happy married life, and all of a sudden, everything changed. um, I won't name it that it changed. It just rerouted me to something which was more important, and I feel that God has put me into this test to come out more stronger. I had been introvert throughout my life. I don't know how I am able to speak with so many people on behalf of so many people. I don't know how that courage comes. I really don't know. But all of it has only come because I had felt the pain and I had accepted my self for what has happened to me and moved on, uh, doing something more important in the society, for the society. And that's how I say that my life has been rerouted for the right purpose, for the purpose I was made for, I was sent to. And I am just enjoying and loving every part of my life and what I have been doing so far. Ma'am, it's so inspiring to know this. And you've mentioned that you have been an introvert throughout your life, and currently you are running your own organization, and you are definitely an inspiration for so many out there. Would you like to share something about your org as well? Yeah, so and with all this experience and all what I wanted to do, everything uh, is Atijeevan built off, and Yeah. Atijeevan Foundation I started in 2013, and the core purpose was to provide guidance, support to all the survivors who has been through the similar experience. Mhm. And gradually we shifted to more and more things, advocacy and awareness, which I felt that is very important for people. I always talk about prevention, and I always say that if we
make the society aware and youth aware that how we can prevent this kind of attacks or any kind of burn injury, we'll be able to save many lives in future. And that is very important. So we have been working all across the country for the through our national campaign on burn prevention and first aid. Yeah. So if everyone is aware about the first aid, we'll be able to save more lives. And the face, the scars and all, everything can be lesser if the first aid is provided in at the right time. The right first is aid is provided. So yeah, through Ati Jeevan we have rebuilt more than 500 survivors life. And I feel that we have just started. There are so many burn survivors who have never come out of their house and never been into the society, never been to meet people, because their face is scarred, their face is disfigured. And what we think as a society is, somebody who is not presentable, somebody whose appearance is different, we consider them as not being around us. We don't we make beautiful good looking friends, we make active friends, we make friends who are more outspoken, friends who are more lovely, cheering, cheerful, like that. So I want acid attack survivors to come out and talk and make friends, make good friends with and live a happy life. That's the goal of Ati Jeevan. यस मैम एंड ऑल्सो एज यू मेंशन कि एक साल में 200 से ऊपर एसिड अटैक केसेस स्टिल आ रहे हैं एंड वी जेन्युइनली नो कि जितने केसेस आ रहे हैं उसमें से कई ऐसे होते हैं जो आने की हिम्मत भी नहीं रखते इन फ्रंट या अपनी केस लड़ने की उतनी शक्ति नहीं हो पाती सब में बट वी ऑल्सो नो मैम दैट देयर आर लॉज जो इम्प्रिजनमेंट अगेंस्ट एसिड अटैक्स वगैरह है बट स्टिल व्हाई डू यू थिंक वेयर इज इट लैगिंग बिहाइंड या अभी भी क्यों ये हमें देखने मिल रहा है कि एसिड अटैक्स आर स्टिल देयर बर्निंग केसेस अभी भी साल में 1,000 से ऊपर फाइल होते हैं तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सबसे बड़ी बात है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में। हम क्या आज ये बात कर सकते हैं कि हम आज जो भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमको, हम अपने विसिनिटी, अपने घर के आसपास के 2 या 3 शॉप में जाकर के इंश्योर कर सके कि वहां एसिड ना बिके। एसिड क्यों बिक रहा है? एसिड की जरूरत क्या है हमको? हम क्या ये प्लेज कर सकते कि हम अपने घर में या अपने रिलेटिव्स के घर में, अपने फ्रेंड्स के घर में एसिड नहीं आने देंगे? हम इतना प्लेज कर लें, और धीरे धीरे अगर 1 और 10 और 20 और 1,000 लोग अगर ये प्लेज कर ले और ये इंश्योर करे, तो एसिड मिलेगा ही नहीं मार्केट में। आप अपने पास के 4 शॉप में जाकर के या 5 शॉप में बोलिए कि एसिड आपको नहीं बेचना है, इसके अराउंड लॉ है। अगर आप किसी माइनर को एसिड बेचते हैं या बिना कारण किसी को एसिड बेचते हैं, तो आपको 50,000 रुपए का फाइन लग सकता है। क्या हम ये लोगों को बता सकते हैं? ऐसा अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, और तो एसिड बिकता है, एसिड मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। 20 रुपए 30 रुपए में 1 लीटर का कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मिल जाता है। मैं तो कहती हूँ एसिड today is the most easiest and cheapest weapon available in the market. क्यों है ये वेपन अवेलेबल अभी मार्केट में, जब ये किसी की जिंदगी खराब कर सकता है, किसी का चेहरा खराब कर सकता है? इसकी जरूरत नहीं है। क्या हम इतना प्लेज कर सकते हैं कि हम किसी और चीज से भी सिवाय एसिड के हम अपना बाथरूम क्लीन कर सकें? सर्फ से भी हो जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक क्लीनर्स भी मिलते हैं जिससे हम साफ कर सकते हैं। हम क्यों एसिड खरीदते हैं? बस आसानी का तरीका। घर में ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं जहां बच्चे कोक समझ के या कुछ और कोल्ड ड्रिंक समझ के वो एसिड को पी लिए और उनका पूरा फूड पाइप, एसोफेगस पूरा जल गया है। कितने केसेस में तो मर भी गए हैं।
क्या हमको पता है? हाँ, बहुत कम होते हैं ऐसे केसेस, लेकिन वो तो बस दबे रह जाते हैं, हमको लोगों को पता ही नहीं चलता। तो अवेयरनेस नहीं है, ये सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को पता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, और हर एक इंसान बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले कर सकता है। तो हम एक इंसान अगर प्लेज कर ले कि मैं आज से जहां भी चलूंगा मैं बात करूंगा, या चलूंगी जहां बात करूंगी, मेरे घर में एसिड नहीं आएगा, मेरे फ्रेंड्स के घर में नहीं आएगा, मेरे रिलेटिव के घर में नहीं आएगा, तो हम तो ऐसे ही एसिड के अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स में रोक सकते हैं। दूसरा कि फर्स्ट एड नहीं पता होता है। ट्रू। हमारे सामने कितनी सारी सर्वाइवर्स और कुछ सर्वाइवर्स बहुत बुरी तरह जल गई हैं। और क्यों जली है? क्योंकि तुरंत उनको पानी नहीं मिला, किसी ने पानी डाला नहीं, किसी को समझ नहीं आया, किसी ने दूध डाल दिया, किसी ने कुछ और डाल दिया। तो ये किसी को समझ नहीं आता कि करना क्या है। मतलब अगर बाई स्टैंडर्ड है भी, अगर रोड पे हो गया, मेरा तो ट्रेन में हुआ था, जहां हुआ था वहां से लोग भाग गए थे ये करके कि लड़की जल रही, जब मैं चिल्ला रही थी कि जल रहा है जल रहा है, उनको लगा आग लगी, वो सबके सब भाग गए। सिर्फ एक डॉक्टर आई थी, वो डॉक्टर दूसरे कंपार्टमेंट में थी, वो आई कि जल रहा है तो उस बच्ची को बचाना है। वो ब्लैंकेट, गीला ब्लैंकेट लेके आई कि आग लगी, उनको तो पता भी नहीं था आग लगी है, उस बच्ची को कैसे बचाना है, तो आग लगी है तो गीला ब्लैंकेट उसके ऊपर डालना है। तो लोगों को पता ही नहीं होता, लोग भाग जाते, कुछ नहीं करते। तो फर्स्ट एड नहीं मिलता है तो चेहरा बुरी तरह झुलस जाता है, बहुत बुरी तरह डिसफिगर हो जाता है, मतलब आंखों की रोशनी चली जाती है, चेहरा बुरी तरह डिफॉर्म्ड हो जाता है। तो उसके लिए मल्टीपल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज की जरूरत होती है। तो फर्स्ट एड का अवेयरनेस नहीं है। तीसरा, बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं है ट्रू। हमारा। अभी भी कहा जाता है कि मतलब अप टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। क्या है अप टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट? बहुत कम गिने चुने 4-5 केसेस में आज तक का मैं बता रही हूँ इंडियन इसमें पनिशमेंट में जो एसिड अटैक परपेट्रेटर्स को मिला है, गिन के 4-5 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, वो भी 6-7 साल के अंदर बेल पे बाहर निकल आए हैं। तो हमारा लॉ, और हम सबसे दुख की बात यह है कि हम अ, किसी को भी ब्राइब दे करके और मतलब बाहर निकल सकते हैं, तो ये ट्रू। बहुत मुश्किल चीज है। जो इंसान पैसे नहीं है जिसके पास, वो कभी केस नहीं जीत पाता, वो कभी न्याय उसको नहीं मिल पाता। तो ये बहुत दुख की बात है, ऐसा होता है। और यही कारण है कि अभी भी एसिड अटैक्स होते हैं, यही 3 कारण हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, यही 3 कारण हैं। मैम, आपने कहा कि केस नहीं जीत पाता, इससे हमें आपकी हिस्टोरिक जीत की याद आती है। तो मैम, people are not actually aware that how acid attack survivors were being blocked out of, the digital economy because they were not able to blink in front of the camera. And आज what do you think, जो कोर्ट का ऑर्डर उसके बाद आया, उससे आज जो 2026 साल में अगर कोई सर्वाइवर है उनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा इसका? देखो, जब ये मेरे साथ हुआ 2021 में और फिर 2023 में, 21 में हुआ तो वो सिम कार्ड के साथ हुआ था। मैं सिम कार्ड लेने गई थी और एक्सेप्ट नहीं हुआ था मेरा एप्लीकेशन। हम्म। और जब 23 में हुआ तो वो बैंक अकाउंट के साथ हुआ। तो हम्म। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि कल को ये जब मैं एटीएम से पैसे निकालने जाऊंगी, तब कहीं मुझे आई ब्लिंक करने के लिए बोले और मैं वो भी ना कर पाऊं, तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। हम्म। और हम्म। मतलब बहुत सारी चीजों, अगर आज मैं आवाज नहीं उठाई तो ये तो बहुत सारी चीजों में रिस्ट्रिक्शंस आने लगेंगी। बहुत अच्छी बात है, हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया बन रहा है, लेकिन क्या हम पीपल विद डिसेबिलिटीज या एसिड अटैक सर्वाइवर्स को साथ में, उनकी उनके चैलेंजेस को साथ में सोच करके आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम जो नॉर्म्स बना रहे हैं, जो हम डिजिटल इंडिया को और सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम्म। अपने रोजमर्रा की लाइफ में आने वाली चीजों को, क्या हम उसको जब बनाते हैं और वैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, क्या हम सोचते हैं कि पीपल विद डिसेबिलिटीज या एसिड अटैक हम्म। सर्वाइवर्स को ऐसी दिक्कत तो ना हो उससे? तो हम्म। वो चीजें बताना
अथॉरिटीज को बहुत जरूरी था। और तब मुझे लगा, और तब मैंने, फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसे लॉयर्स भी जुड़े जो यू नो हर तरीके से मुझे मदद किए, और उनकी वजह से, ओनली बिकॉज ऑफ देम आई वाज एबल टू रीच आउट टू द एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच पाई उनके वजह से। और यू नो उस टाइम सीजेआई जो थे, डीवाई चंद्रचूड़ थे, जो बहुत ही यू नो वो रखते थे पीपल विद डिसेबिलिटीज के साथ, हम्म। उनको बहुत एम्पैथी था। तो हम्म। उन्होंने सुना, और उसके बाद द रेस्ट इज विद एवरीवन, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अमेजिंग मैम। मैम विद दैट आपको नारी शक्ति पुरस्कार मिल चुका है एंड करेंटली यू आर आल्सो वर्किंग क्लोजली विद गवर्नमेंट टू टू many things, and we are also seeing there's a push towards bringing a national burn awareness day. So what are your specific ask towards the health minister at this point, and also what are the things you think that the public can do to make this campaign a success? See, we want public to talk about the prevention and the first aid. Yeah. That's the only thing, and uh, the best thing what everyone, each one of us can do. When we talk about prevention, एसिड अटैक स्टार्ट कैसे होता है, होता क्यों है, उसके पीछे Mm. बहुत लंबी कहानी होती है। प्रपोजल होता है, रिजेक्शन होता है, स्टॉकिंग होता है, ईव टीजिंग होता है। तो हम जब स्टॉकिंग और ईव टीजिंग होता है, और उस टाइम अगर लड़कियां अवेयर हैं, आसपास के अगर क्लासमेट्स, मतलब मेरे पास तो ऐसी सर्वाइवर है जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, और वो कोचिंग जा रही थी सुबह सुबह 5 बजे। उसके ऊपर उसको लड़के ने, कोचिंग के लड़के ने प्रपोज किया, और उसने बस ऐसे ही मना कर दिया कि नहीं, मुझे तो अभी पढ़ाई करना है। वो नीट की कोचिंग कर रही थी, और मुझे अभी पढ़ाई करना है। और अगले दिन उस लड़के ने आकर के उसके ऊपर एसिड डाल दिया सुबह सुबह 5 बजे। तो ये कोई कैसे सोच सकता है, तभी समझ सकता। और मतलब उसको उसको देखता था, घूरता था, उसके लिए बातें करता था, कभी इशारे करता था। वो इन सब चीजों को इग्नोर की, कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बोली, कभी कंप्लेन नहीं की। तो ये ऑल दीज थिंग्स लेड टू एन एसिड अटैक। So it can be prevented when we start talking about it. अगर आपके आसपास किसी को, अगर कोई लड़का या छेड़ रहा है, या कोई प्रपोज किया और फिर भी वो छेड़ा जा रहा है, या कोई पीछा कर रहा है, तो आप वहीं उसको स्टॉप कीजिए। You must talk about respecting the other gender's decision. That's the thing which we are not doing. Like, लड़की है तो वो मेरा बात उसको मानना चाहिए, अरे मैं तो इतना अच्छा हूँ, उसको मेरा प्रपोजल उसको Accept करना चाहिए। मानना ही चाहिए, एक्सेप्ट करना ही चाहिए, नहीं किया तो उसको सजा देनी चाहिए। ये कहाँ से थॉट प्रोसेस आता है? तो ये आता है घर से, या घर में ऐसा देखा है, या फिर स्कूल में ऐसा देखा है, ऐसी बातें सुनी है। तो हमको स्कूल और घर में ये समझाना है कि सबका डिसीजन को रेस्पेक्ट करना है हमको, चाहे वो लड़की हो सामने वाला या लड़का हो। तो अगर जब हम सबके अदर जेंडर के डिसीजंस को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, अदर जेंडर को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो कभी ऐसी चीजें होंगी नहीं। हम्म। राइट। तो वहां से शुरू होता है, और हम प्रिवेंशन पे बात करते हैं, देन फर्स्ट एड पे बात करते हैं। लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करना है। बहुत सारे मिथ है जिसको हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, कि मिल्क कोई डाल देता है। एक वायरल मैसेज हुआ था कि एसिड अगर डाला है तो मिल्क डाल दो, दूध डाल दो, उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड का इफेक्ट। ऐसा कुछ नहीं होता है। एसिड को बस डाइल्यूट करना है हमको। वो डाइल्यूट हम सिंपल तरीके से, कि नल के नीचे इंसान को जिसके ऊपर डला है एसिड, उसको ले जाके रख दे, या पानी डालते रहें आधे घंटे, 45 मिनट, जब तक बर्निंग सेंसेशन सबसाइड नहीं हो रहा है, या फिर जब तक हम हमारे पास या कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, या हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक बस पानी डालते रहें। सारे बर्न्स में हमको यही करना है, एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रिकल बर्न्स। हमको सारे हर तरह के बर्न्स में पानी डालना है। पानी इज द राइट फर्स्ट एड ऑन ओके। बर्न्स। या
मैम हम बात कर सकते हैं अवेयरनेस की, या हमें एसिड कैसे हम दुकानों में सप्लाई के बारे में देख सकते हैं, बट देयर इज ऑल्सो माइंड सेट। हाउ डू वी चेंज दैट? बिकॉज अगर हम कह रहे हैं कि कोई रिजेक्शन को सह नहीं पा रहा है एंड देन वो किसी की जान लेने पे उतर रहा है, सो दैट माइंड सेट शिफ्ट इज ऑल्सो नीडेड। सो कहीं ना कहीं, हाउ, वट डू यू थिंक कि कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं? बिकॉज दिस इज सीरियस। Yeah, of course, and it will take ages to change the mindset, and we can start with the young age. So when we talk about school children and our own children, we must tell them that it is very important to respect and respect the girls you are meeting, respect your friends you are around with, and uh, support them if anything happens. आजकल आजकल कोई इंसिडेंट होता है, अभी वेरी रिसेंटली लास्ट वीक का मैंने केरला का एक इंसिडेंट देखा जहां बस में आग लग गई थी, और हम्म। आसपास के लोग सारे के सारे पहुंच गए उसको रेस्क्यू करने में, और हम्म। एक भी इंसान को खरोच तक नहीं आया, सबको सेफली रेस्क्यू कर दिया। और ये कैसे हुआ? बिकॉज एवरीबडी, द बाई स्टैंडर्ड्स वेर vigilant and हम्म। active. We had active bystanders around them, like, right? So humko, rather than taking selfies and taking videos, ट्रू। we ट्रू। must act immediately to हम्म। support someone in distress, to support someone in problem, right? So and that's how we make and we must respect other life, राइट? हम्म। कि आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई मर रहा है, खून निकल रहा है, और आप वीडियो ले रहे हैं। ये चीजें हमको स्टॉप करना है जो हो रहा है, एंड वील बी एबल टू सेव एवरीवन, आई थिंक। सो ट्रू। मैम जैसे कि आपने मिथ के बारे में बताया कि काफी सारी स्टीरियोटाइप्स या मिथ्स है, जैसे अगर मेरे घर में ही कुछ छोटा मोटा खरोच लग गया या आग से कुछ लग गया तो वी से कि अच्छा घी लगा लो, टूथपेस्ट लगा लो। सो डू यू थिंक दीज आर ओके, या दीज कैन बी एक्चुअली वेरी सीरियस? सो एंड ऑल्सो सी मैम मैंने, यस यस, मैंने आपके 20 मिनट कूल वाटर रूल के बारे में भी सुना था, सो आई वुड रियली लाइक टू नो अबाउट इट मोर। See, sometimes it works because अगर सुपरफिशियल बर्न है तो हम्म। कुछ भी लगा लो वो तो हील हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। हम्म। वी मस्ट बिलीव आवर बॉडी, इट विल हम्म। हील ऑन इट्स ओन, राइट? बट ट्रू। हमको ऊपर से सपोर्ट करना है, राइट? तो सुपरफिशियल बर्न है, आप घी लगाओ, आप कुछ भी लगाओ, वो ठीक हो जाएगा कुछ दिन में, हम्म। मतलब हम्म। एक हम्म। वीक 10 दिन में ठीक हो जाएगा। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है? अगर सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री बर्न है और आप उस पे घी लगा रहे हो, या आप उस पे कुछ भी किसी तरह का टूथपेस्ट लगा रहे हो, या कुछ भी लगा रहे हो, और इन्फेक्शन वहां पे बढ़ जाता है जब थर्ड डिग्री बर्न है, और आपको तो उस टाइम समझ नहीं आएगा, जलेगा। सुपरफिशियल बर्न भी स्टार्ट में बहुत ज्यादा जलता है, 1-2 घंटे जलता है, छह हम्म। सात घंटे बाद वो सबसाइड हो जाता है। लेकिन थर्ड डिग्री बर्न जो है वो जलता रहेगा और इन्फेक्शन उसमें ज्यादा बढ़ेगा। तो वहां पे जब आप टूथपेस्ट या कुछ और लगाओगे तो वो इन्फेक्शन को और बढ़ावा देगा, rather than आप पानी लगाए वो ब्लिस्टर होगा, ब्लिस्टर को हमने फोड़ दिया। ब्लिस्टर भी फोड़ा जाता है अंडर मेडिकल सुपरविजन, ऐसे हम्म। आप नहीं फोड़ सकते, नहीं फोड़ नहीं सकते। फोड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इन्फेक्शन का तरीका है, मतलब इन्फेक्शन का जरिया है। तो हम्म। इन चीजों को, इन मिथ को हमको ब्रेक करना है कि हल्दी डाल लो, हल्दी से ठीक हो जाएगा। ठीक है, सुपरफिशियल बर्न है तो ठीक ही हो जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा जल गया है तो आपको डॉक्टर के पास लेकर के जाना है। वो हल्दी से नहीं ठीक होने वाला है, वो दूध से नहीं ठीक होने वाला है। तो हमने तो जिंगल्स बनाए हैं कि आप दूध में हल्दी को डालो, उसको पी लो, आइस का गोला खा लो, टूथपेस्ट को ब्रश में लगा लो, लेकिन जलने पे आप सिर्फ पानी इस्तेमाल करो। हम्म। तो ओके। मैम वही पानी इस्तेमाल करो ही है क्या 20 मिनट कूल वाटर रूल? हाँ, 20 मिनट आप कभी भी कैसा भी बर्न हो, हम्म। एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रिकल बर्न्स, यस। आप पानी के अंदर अपना हाथ डाल दो, या जहां भी बर्न एरिया जो है वो डाल दो, और अंटिल इवन मोर, हम्म। फॉर मोर टाइम, अगर बर्निंग सेंसेशन आपका फिर भी है तो आप डालो पानी को। आप डॉक्टर के पास, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा वो रेड हो गया, या वहां की स्किन 15-20 मिनट में आपको तुरंत दिख रही है कि निकल रही है,
या Hmm. वहां की स्किन पूरी सिकुड़ गई है, विच मीन्स इट्स अ सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री बर्न, इन दैट केस यू हैव टू रश टू हॉस्पिटल। तो आप Hmm. हॉस्पिटल जाओ, आप पानी में हाथ डुबा के या जहां भी पानी आप 20 मिनट पानी डालो और उसके बाद आप हॉस्पिटल जाओ। आप घर में होम रेमेडीज से मत सोचो कि वो ठीक हो जाएगा। इफ इट इज अ डीपर बर्न, you need hospitalization, you need a doctor. It cannot be healed at home. So that is very important, everyone should understand. मैम कोई बर्न होने के बाद डू यू थिंक कितना टाइम लगता है ये समझने में कि वो कौन से डिग्री का बर्न है? जैसा मैंने बताया कि सुपरफिशियल बर्न हमारा होता है, जैसे कभी भी गर्म बर्तन में हाथ लग गया हम्म। या कुछ भी, जो लाल तो होता है लेकिन स्किन वहां की बहुत ज्यादा सिकुड़ती नहीं है या नहीं है। निकलती नहीं है, और या फिर फूल नहीं जाता है, तुरंत ब्लिस्टर हम्म। नहीं हो जाता है वैसा। तो जैसे कुकर से अगर मतलब या फिर बहुत बॉइलिंग वाटर एकदम गिर गया शरीर के किसी हिस्से हम्म। पे, और तुरंत स्किन वहां की निकलने लगी, वहां पे हमने पानी लगाया या कुछ भी, स्किन निकलने लगी, हमको सफेद वो दिख रहा है, या तुरंत ब्लिस्टर्स हो गए बहुत सारे, या बड़ा एरिया है, छोटा सा एरिया नहीं है, बड़ा एरिया है बर्न का, कि मतलब दोनों हाथों पे गिर गया दूध या हम्म। उबलता हुआ पानी, तो आपको तुरंत रश करना है। वो मतलब फिर आपके बस की बात नहीं है उसको ठीक नहीं करना, है। या बहुत सारे केसेस में, इनफैक्ट एसिड बर्न केसेस में भी आधे घंटे के अंदर धीरे धीरे वहां पे स्वेलिंग बढ़ने लगती है। जब बहुत ज्यादा डीप बर्न होता है तो तुरंत वहां पे स्वेलिंग होने लगती है। तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जब तुरंत अगर आपको लगे कि हाथ के किसी हिस्से में बर्न्स है या कहीं भी बॉडी पे है, तो उस जगह का कपड़ा हटा दें। उस हम्म। जगह अगर कोई ज्वेलरी है या नेकलेस है या रिंग्स है या ब्रेसलेट है, बैंगल्स हैं, आप उन सबको हटा दें और आप उस हिस्से को पानी में डालें। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि जब स्वेलिंग होती है तो आपका अंगूठी है या बैंगल्स है या चेन है, वो सारा स्किन के अंदर चिपक जाएगा, और फिर डॉक्टर को उसको निकालने में आपकी स्किन, चमड़ी भी निकल जाएगी, स्किन पूरी खिंच जाएगी, या कपड़े अगर चिपक गए स्किन में तो वो और भी दर्दनाक हो जाता है पेशेंट के लिए। जब वो डॉक्टर को उसको निकालना होता है, कपड़े पूरे चिपक जाते हैं और एकदम गल जाएंगे। इमेजिन, इन एसिड बर्न केसेस और इन सीवियर बर्न, एसिड बर्न, फायर बर्न में तो ये तुरंत होता है। तो आपको तुरंत इसमें एक्ट करना है कि ज्वेलरी, कपड़े, सब कुछ निकाल दें और पानी डालना शुरू करें। तो ये मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, एंड कीप पोरिंग वाटर until burning sensation subsides, or rush हम्म। to the hospital. So these things are very important things which people need to understand and learn. And I believe that from children to old age people, everyone should know the first aid for ट्रू burns. ट्रू ट्रू ट्रू। यस मैम, एब्सोल्युटली। आई मीन द लैक ऑफ अवेयरनेस इज वन ऑफ अ रीजन कि ज्यादा एक्सीडेंट हमारे हाथों से बढ़ जाते हैं, राइट? विद दैट मैम, आई वुड लाइक टू प्ले अ रैपिड फायर राउंड विथ यू। Yeah. So ma'am, toothpaste on a fresh burn, is it a lifesaver or a lethal, and why? Uh, no, it's a myth and it's lethal. It should not. Toothpaste should be used only on brush, not on your burns. It may cool or give a menthol cool feel for a Mm-hmm. while, but Hmm. it is not safe to use toothpaste on the burn area. Absolutely. Ice on a burn, yes or no? Eyes on a burn means On a place that is burned, like on a body part somewhere, should we apply ice there? no, 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 No. absolutely no. Acid, yeah, any हाँ, burn, पानी में just डालो cool और पी running water. जाओ। हाँ, पानी में डालो। आइस से बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। हमको लगता है Okay. कि आइस ठीक हो जाएगा, नहीं, आइस से ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। और अगर बड़े हिस्से पे अगर है और हम बर्फ का पानी डालते आ जाए ना, तो हम तो पेशेंट को ही एकदम फ्रीज Hmm. कर देंगे। वी डोंट वांट टू डू दैट, राइट? Yeah, yeah. सो जस्ट कूल रनिंग वाटर। Okay. The biggest barrier for a survivor in 2026, is it surgery or the society? द सोसाइटी।
सी सर्जरीज तो ऐसी चीज है जो होगी, होते रहेगी, एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. मतलब मुझे आज भी बहुत सारी सर्जरीज की जरूरत है, बट आई हैव काइंड ऑफ पॉज्ड इट. बट सर्जरी हमेशा जरूरत पड़ती है. कभी कोई कहीं का हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपको उसको कॉन्ट्रैक्चर रिलीज या कुछ भी चीज आपको जरूरत है, ग्राफ्टिंग की जरूरत है. लेकिन हम उन सब चीजों से बाहर निकल के, वंस वी एक्सेप्ट ourselves, we can come out, we want to do something, you know uh, we want to come out, we take courage, and we come out, and then society is not ready to accept us. That's the biggest setback anyone can get, because society doesn't know how to behave with an acid attack survivor or a person with facial disfigurement. They don't know. There has been incidents where, where I have gone to schools, and the mothers, when the children, they ask questions, mama see ghost, mama see auntie, what happened. So those mamas will close the eyes of their children. So, rather than answering that, auntie got burned, or, something has happened, and say hi to auntie or say hello, rather than teaching the child that there are different kind of people in the society, there are educated people who are just turning their child away from these kind of, awareness, and not willing to talk about it. That's the biggest disappointment, that people are not willing to talk about it. What can be done? And rather than asking that how can we help you, um, people behave like, कि बेचारी, इसके साथ ऐसा हो गया, इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई. नहीं, मेरी जिंदगी नहीं बर्बाद हुई. मैं You don't अभी need भी your उतनी स्ट्रांग हूँ, इनफैक्ट ज्यादा स्ट्रांग हूँ. ये आपकी सोच है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई. मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने और ज्यादा काम कर पा रही हूँ मैं इस जिंदगी से, rather than what I would have been able to do, uh, if this has not happened. So, it's the kind of mindset which of the society which becomes the biggest barrier for an acid attack survivor or people with facial disfigurement. Ma'am, I think to change this, social media at this point can play a very big role, right? And also, we can start making more movies on such topics. Like, I only remember Chapak was the only movie that I saw was related to acid attack survivors. Other than that, I'm not sure if there are any movies. And hence, it turns out to be that, okay, there's lack of awareness. But we need to also think about the steps that how can we aware actually the people out there, and also from a very young age, especially, right? Yeah. Talking about the movies, I think few days back I was watching something, and this incident of acid attack, threatening scene happened, where the boy in the class threw water on the girl, and the girl started screaming because she thought it was an acid, and he told Mm-hmm. that अभी तो पानी डाला है, कल को कुछ और भी हो सकता है. you know these kind of scenes, and talking about, making it normal, is Yes. also not okay, Not okay. right? Making rapes normal in the movie is not okay. Of course, people need to be aware, and we need to be uh, uh, very conscious in what we are sharing on screen, because we have no control that who is watching it, right? Yeah. It can be a 2-year-old child or a 20-year-old young boy who want to take revenge, and he sees that, and gets an idea. So we need to be very, very aware what we are showing on screen. So that's very important thing, what I feel.
I think there have been also many reported case which are got inspired by Crime Patrol or Yeah, Savdhan India. yeah, yes, So yes, true, yes. so true. See, Crime Patrol is something, which just shows what happens, Hmm. what has Hmm. happened. But yeah, but we need to be, what I am saying is we need to be very much aware when we are talking about it. Then, आप दिखा रहे हो कि अटैक हुआ, तो आप ये भी दिखाओ कि उसको सजा भी मिली. True. We should not encourage. आप ये दिखाओ कि उस दुकान में जहां बिका वहां भी उसको सजा मिली. तो people get scared of, you know or Hmm. of doing, thinking about that, कि True. अगर मैं ऐसा किया तो मेरे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, पूरी सोसाइटी मेरे अगेंस्ट हो सकती है, Hmm. Hmm. मेरे माँ बाप को बॉयकॉट कर सकती है. अगर ऐसा डर रहे इंसान के उसमें, तो वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा. राइट. Hmm. इंसान को पता है कि सोसाइटी कुछ भी हो, एक लड़के को एक्सेप्ट कर लेगी और एक लड़की को विक्टिम बना देगी. राइट. कि उसकी इज्जत चली गई, उसके साथ ऐसा हुआ, तो वहां वो सोच की वजह से और ज्यादा चीजें बढ़ रही हैं. तो क्यों ना हम अपने लड़कों को ये बताएं कि नहीं, तू गलत देख रहा है तो तेरी नजर गलत है, तू गलत है. ठीक है. और हम मतलब वहां पे बात करें कि कैसे इन चीजों को सुधारा जा सकता है, ना कि Hmm. बॉयकॉट करके, यू नो की बात करके. मतलब सबसे सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सोसाइटी में ये है कि हम चीजों के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में बात नहीं करते. भाई, True. तेरा बेटा अगर ऐसा बोला तो क्यों बोला, समझ उस चीज को और उस चीज को सुधारो, Hmm. rather than just being silent about it. And even about neighbors, even about the society, if something has happened, don't be silent about it. Talk to the person why you did, Hmm. Hmm. and how we can prevent. Prevent this. True. True. Ma'am, with that, my last rapid fires question would be: acid attack law, is life imprisonment is enough? नो, नो. सी, मेरे पास अभी 350 से ज्यादा लड़कियां हैं जिनके ऊपर ऐसी घटना हुई है, लड़के और लड़कियां मिला करके. तो किसी से भी आप पूछ लो, सबके सब बोलेंगे कि उसके ऊपर एसिड डालो. वही सबसे बड़ा यू नो न्याय होगा हमारे लिए. और यही न्याय है ना. 4 साल, 5 साल, 10 साल सजा काटना, यही न्याय है. वो फिर उसके बाद वहां से निकल के तो वो अपनी लाइफ नॉर्मल जी रहा है. जी रहा है. मेरी लाइफ को क्या हुआ? तो मेरा एक करियर था जो खत्म हो गया. मैं कभी कभी काम, मतलब बहुत लड़कियों को या इवन लड़कों को काम नहीं मिलता, Hmm. बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस. वो कुछ आगे बढ़ना भी चाहे तो सोसाइटी उनको ब्लेम करती है, ओनली बिकॉज समथिंग हैज हैपेंड टू देम. And this is something you cannot even hide. Your face is burnt, and you, Yeah. wherever you go, you will go with the same face, and you cannot hide yourself. You cannot wear a burqa and go everywhere, right? Hmm. So people will, the first thing people will see is your face, and they'll reject you. Throughout your life it is going to happen, every day it is going to happen. Even your children are going to be questioned, how your mother looks and why she looks like this. Even your husband, even your parents, your siblings will be questioned every day. True. Why? She doesn't deserve that, right? So life imprisonment is the least we can give Hmm. Hmm. to and outcast from the society. That is one thing. He or she who has thrown acid on someone should not be given opportunity to live a life or get a job. Uh, you know, uh, uh, I have seen the perpetrators coming out on bail within 4 years and 5 years and doing business, getting married. Who are the girls who are marrying those perpetrators?
Who are the families who are marrying those perpetrators, their children, their girls, their child? I want to know, what kind of mindset and we are living with. We need to outcast those perpetrators, and until these things happens, these kind of attacks will keep happening with the girls. True. But ma'am, we don't have a law to show the face of the perpetrator, right? And I don't know if that's okay or not. Why to hide the face of someone who has actually done something wrong? Instead, the victim Shame is the the one who is perpetrator. Shame the perpetrator. मेरे को तो मेरा अगर बस चले तो मैं तो मतलब मैं सबका फोटोज डाल दूं सोशल मीडिया पे. शेम द true. perpetrator. This is the person who threw acid on some girl. चाहे कुछ भी कारण हो, Hmm. कुछ भी कारण हो, उसने मना किया, उसने रिजेक्ट किया, उसने धोखा किया, उसने प्यार किया, नहीं किया, आपका हक नहीं बनता नहीं किसी के बनता. ऊपर एसिड डालने का. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका हक है एसिड डालने का, तो उस लड़की को वापस एसिड डालने दो. और नहीं तो शेम दोस परपेट्रेटर. they Absolutely. they are not entitled to live in the society and live a normal life. True. Ah, I mean, you have so much of strength, ma'am. It's so inspiring to listen your story and the work you're doing. I was throughout the session, I was getting goosebumps listening to you that you have gone through so much, and it's true that pain makes a person powerful, and you're absolutely an example of it. But at the same time, no one deserves that pain to become powerful, right? But yeah. With that, I would like to open the window for our audience. If you have any question, आप मैम से कुछ भी पूछ सकते हैं comments में. We will see. ऑल्सो विद दैट मैम हमने जो प्रथा के साथ अतिजीवन फाउंडेशन का जो कोलैब अभी चल रहा है उसके बारे में भी बता देते हैं कि अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई रील बनाते हो एसिड अटैक अवेयरनेस को लेके एंड आप किसी भी 3 जनों को आपके बाद भी टैग करो जिनको आप चाहते हो कि ये वीडियो बनाए एंड उसी के साथ आपके वीडियो का फर्स्ट हैशटैग होना चाहिए से नो टू एसिड अटैक्स एंड इसी के साथ आपको जो भी विनर्स होंगे उसमें से इस पूरे कैंपेन का आपको अवार्ड्स मिलेंगे एंड गिफ्ट्स आपको गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह मिलेंगे प्लस एक इन्फ्लुएंसर अवार्ड मिलेंगे जिनके वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज भी आएंगे सो पीपल डू पार्टिसिपेट इन दैट आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा मैम का ये I joined this live just now and I saw you, ma'am. I'm literally feeling very ashamed in living this kind of society. We are women, are where women are really not respected. Uh, I would like to tell yes, ma'am. something that, when you're not respected, demand for respect, and that's how, you know, demand for respect at the table, demand for respect in your home, and not only demand, your behavior should show that, you deserve that Deserve the respect. respect. So keep working on it. It has never been easy to any girl, neither to me. Um, but I think together we can, aware and have empathy with people who are not that fortunate. True. Ma'am, also feminism is a very hot topic nowadays. Some people are looking at it in a good perspective, and some things that it is just about hating men. Would you like to say something about that as well? See, I am like biggest feminist. मेरे से कोई ऐसा बात नहीं कर सकता जब जब आपके मैं तो कहती हूँ मुझे एक बार बहुत ट्विटर पे बहुत लोग वो कर रहे थे कि बहुत ज्यादा बनने आई है फेमिनिस्ट और ये बट हैविंग सेड दैट मैं कहती हूँ कि जिस दिन एसिड अटैक्स
और रेप्स लड़कियों पे रुक जाए तब आप बोलना की बराबरी की बात कर रहे हैं। जिस दिन लड़कियों को मारना और दहेज प्रथा खत्म हो जाए तब आप कहना कि फेमिनिज्म की बात नहीं करते हैं। और तब तक हम लोगों को आवाज उठाने दो, बोलने दो, बातें करने दो, ताकि अ, कुछ लड़कियां, कुछ प्रज्ञा जो हिम्मत करना चाहती हैं और करें, हम और हजार और लाख प्रज्ञा खड़ी कर सकें, जो अपने लिए बोलें और दूसरों के लिए भी बोलें, दूसरे के हक के बारे में भी लड़ें। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हमको ये बड़ी बड़ी बातें और होते हैं गलत दूसरे जेंडर के साथ भी होता है, लेकिन अभी भी लड़कियां, एंड इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब, यू नो they have always been suppressed. Until that time it keeps happening, we'll keep talking about it. That's all. Nothing, no more argument on this. Yeah. Someone has commented. I know everyone knows the movie Chapak that was also about acid attacks. People don't know about what girls are suffering. So maybe she's talking about how we can show POVs of the victims in a way that people can actually understand कि उनके साथ क्या हो रहा है. We can show कि ठीक है सजा मिल रही है, even though we are not showing that as well. But also how do we show the POV of that person कि उसके साथ क्या क्या हो रही है, how the society is not accepting the victim instead of the perpetrator, right? Yeah. Yeah, so and every day is a challenge. आज मैं अगर कहीं बाहर किसी दूसरे शहर में जाती हूँ, कहीं ऐसे और स्पेशली मुझे तो लगता है नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में ये बहुत ज्यादा होता है। अगर सड़क में मैं चल रही हूँ ना, आज भी चल रही हूँ, अगर मैं आधे घंटे कहीं एक जगह खड़ी हूँ, एक दो लोग तो आके मुझे पूछ ही लेंगे और तरह तरह का फेसेस बना करके मुझे पूछ ही लेंगे कि अरे बेचारी तेरे ऊपर क्या हो गया, तेरे को क्या हो गया। So I don't want to face this every day, right? And it's a everyday challenge. I'm going to school with my daughter and somebody is asking, what has happened to your mother, Mhm. why is it needed, right? So I am not talking about it, about what is happening every day. Even आप हॉस्पिटल में जाओ, मेरे को ऐसे सर्वाइवर्स ऐसे बताएं कि मतलब ऐसे देखते हैं कि इसका तो पूरा ऐसे ही जला हुआ है, इसके साथ तो इसको ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, प्रॉब्लम होंगे, इसको छुओ ही मत, इसको करो ही नहीं, अरे तू तो ऐसे ही बीमार है। मतलब इस टाइप की भी बातें होती हैं। तो आप कहाँ पे सेफ हो और आपको कहाँ पे आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है, राइट? तो nobody knows even half of the story what any of the survivor faces on True. a day-to-day life, on her day-to-day life, right? You are qualified and still you are struggling for job. You are qualified, you're qualified for a good salary, good appraisal, and Mm. still you are stuck in one a job role because you're not getting job elsewhere, so you are stuck in one job role. ऐसा होता है। हम सर्वाइवर्स को प्लेस करते हैं कहीं पे भी, छोटे कम से कम सैलरी में, क्योंकि कंपनीज को भी पता है कि अरे ये कहीं नहीं जाएगी, इसको ऐसे भी जॉब सब जगह तो मिलने वाला नहीं है ना, स्विच ये मार नहीं सकती, इसके पास उतना अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, तो इसको कम सैलरी में भी रखो, ये रहेगी वहां पे। और ऐसा होता है, इट्स द रियलिटी। इवन कंपनीज, इवन कॉर्पोरेट्स हु आर लाइक educated people sitting there, the leadership, they think like that, and they even accept, acknowledge that acid attack survivors or people with disabilities are their most loyal employees. And why? Because they don't get opportunities elsewhere, they had to stay there, right? Their growth is very slow comparatively to any other individual or their fellow colleague. And why is it happening? Because the society is not acknowledging. That's really a shame for us and for the society.
Ma'am, with that, it was amazing hearing to you. And I think I could see many comments. People are very excited about the challenge that we talked about. Looking forward to all those reels and all those videos and the content that Yeah. you'll make on this topic. Um, with that, ma'am, thank you so much for being here. It was really my honor to get this opportunity to have a chat with you. And I am very sure that everyone who was in the live got inspired, and everyone else who will be looking at this live later on will be getting inspired by your words and your Thank thoughts. you so much for making me part of this, and also being part of this awareness campaign. Which and I want everyone to, and I request everyone to pledge for burn prevention and first aid, and make sure that everyone around you is aware about that. Make sure you respect and love any acid attack survivor or burn survivor who is around you or who you see in your life. The simplest thing what you can do is, smile at them, and be friends with them. Ask them how you can support them or how you can help them. Uh, rather than turning your faces back, and that's all. Love yourself first, and of course, love yourself first and respect everyone. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you.